Yes. As you know that today I have decided to discuss second landmark judgment which have been mentioned in your syllabus. And name of that case is Gaurav Jain versus Union of India and others. In the previous class, I discussed Visaljeet versus Union of India. That case was also related to the prostitution. But Gaurav Jain versus Union of India is related to the children of the prostitutions as well as prostitutions. It means mainly this particular case is related to the children of the prostitutes. In this particular case, Honorable Supreme Court had discussed thoroughly each and everything. In this particular case, Supreme Court will say about the history of the prostitutions, about the problem of the children of the prostitutions. It will say several other things in this particular case have been discussed. I have decided to take two classes on this particular case because this is a very landmark judgment as well as very lengthy judgment. That's why today I will discuss only the facts of the case, issue, introduction, history, problem of the children, region of the prostitutions. Only all these points today I will discuss. In the next class, I will discuss the guidelines and other important points in of this particular case. So what is the case? Case is the Gaurav Jain versus Union of India. And as you know that if you see the previous year question paper, I have already told you that if you calculate question paper, by the calculation of the question paper, you can guess that in the 2020 exam, in this means whatever exam will be conducted in the December 2020, in that case, there will be mandatory questions from the topic of the Gaurav Jain case. Because if you analyze the in the 2019, in the 2019 already Visaljit versus Union of India question have been asked. And if you see the in 2018, Gaurav Jain versus Union of India have been asked. It means 18 talks about Gaurav Jain, 19 talks about the Visaljit, 20 talks about Gaurav Jain case. Same case will be repeated. That's why, according to my predict, Gaurav Jain case are question based on the combined reading of Visaljit and Gaurav Jain case shall be asked in this year. So my point is that you know that one question shall be asked in the competitive in the semester exam. But even though you do not prepare in a well manner, either you get the very less marks or sometimes you failed. That's why my point is that don't do this work. At least prepare 5 topics, and from each topic one question is mandatory. And with the practice, you can get the better marks. So come to the case is that what was the fact of this case? In this particular case, name of the case was Gaurav Jain. Who was the Gaurav Jain? Gaurav Jain was the अगर कोई प्रॉब्लम होगा ग्रुप में तो तुम लोग बता देना कहीं कोई चैटिंग वोटिंग या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है जब पढ़ाने लगता हूँ ठीक ना बाकी तो चल रहा है ठीक लग रहा है मुझे तो गौरव जैन सर वाज हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, अभी रुके रहिए, अभी कुछ लड़के क्लास कर रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा अच्छा मैं जे सेक्शन का मैं- यू क्लास है हाँ, मैं वहां से छोड़ के चला आया जल्दी। अच्छा चलो इसमें तो ठीक है अभी अभी थोड़ा रुक गई। अच्छा चलो मैं तब तक दूसरा टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ जब बच्चे आ जाएंगे तो बताना पहले की टॉपिक डिस्कस कर दीजिए सर। कॉलेज का टॉपिक डिस्कस करते हैं तब तक वही कर लीजिए। हाँ हम तुम लोग हमारे हो ड्राइव करते हैं भरपूर एक्चुअली क्या है ना देखो पिछला क्लास जो डिस्कस किया था एक और टॉपिक एक क्वेश्चन पूछी थी लड़की दूसरे सेक्शन में ई सेक्शन में तुम लोग अच्छा किए थे नहीं पूछे थे तो उसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और थोड़ा सा उसी को डिस्कस कर लेता हूँ ठीक ना उसका क्वेश्चन ये था कि सर इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन मतलब लीगल है या इलीगल है
मतलब सिंपल सी एक लाइन है कि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में ऑफेंस की कैटेगरी में आता है क्या, या ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है? तो आई ट्राई टू रिप्लाई आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस. I divided the prostitution into two parts: minor women or girl, major women. As you know that why I have written the women and girl in the IPC. Women means any age of the female. आईपीसी के पर्पज से महिला का मतलब ये है, वुमेन का मतलब ये है कि चाहे वो एक दिन की हो चाहे 100 साल की हो, दैट इज द वुमेन. आईपीसी के पर्पज से फीमेल गर्ल की अलग कैटेगरी नहीं बनती है. लेकिन जब प्रोस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पुराना एक्ट था, जैसे सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 था, तो हुआ क्या, उस पर्पज में वहां पे स्पेशल एक्ट था, ये सीता एक्ट स्पेशल एक्ट था. तो प्रॉब्लम क्या हुआ, आईपीसी का सेक्शन 5 कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आईपीसी का अगर कोई है तो सेक्शन 5 ही है. वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शन है, लेकिन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो क्योंकि एक जगह मैं इंटरव्यू देने गया था, ऐसे ही मॉक इंटरव्यू देने गया था, और मैं सेक्शन 5 को नहीं बता पाया था, तो उन्होंने मुझे बहुत ही डांटा और समझाया भी. इसलिए मैं तुम लोग को हमेशा 5-6 बताते रहता हूँ क्लास में. लेकिन 5 का पर्पज क्या है यहाँ पे? अब 5 का मतलब यह है कि सीता एक्ट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इसके बारे में 1 मिनट और बताना चाहूंगा. जब ये पास हुआ तो इसका नाम था सीता एक्ट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट. लेकिन 1987 में आकर के इसके नाम को चेंज कर दिया गया. जब नाम को चेंज कर दिया गया तो आईटीपीए हो गया, इमोरल ट्रैफिक ब्रैकेट में प्रिवेंशन ब्रैकेट क्लोज एक्ट 1956. इसका मतलब कि 1956 में जिस कानून का जो नाम था, उस कानून का नाम 1987 में चेंज कर दिया गया. तो उससे पहले कि 1956 में जब कानून लाया गया तो वहां पे कानून में ही नाम रख दिया गया वुमेन एंड गर्ल्स. अब हो गई प्रॉब्लम. देखो इस कानून का एक नाम मैं 1 मिनट लूंगा, जब बोली दिए थोड़ा सा, बस 1 मिनट. इसका प्रॉब्लम ये था, कहाँ गया ऑपरेशन, हाँ देखो, जब ये पहली बार जब कानून आया था, इसमें वुमेन भी अलग से था और गर्ल्स भी अलग से था. अब हुआ क्या, अब आईपीसी कहता है कि सेक्शन 5 कि आईपीसी आईपीसी शैल बी अप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, but in case of inconsistency with the local laws or special laws, these laws shall prevail over the IPC. मतलब अगर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ से आईपीसी टकराएगा तो आईपीसी चूर चूर हो जाएगा. इट मींस दीज लॉ शैल प्रिवेल ओवर द आईपीसी. अब हुआ क्या कि 1956 स्पेशल लॉ है. स्पेशल लॉ क्या है? अब सेक्शन 40 और 41 आईपीसी का, सॉरी 41, 42 आईपीसी का डिफाइन करता है स्पेशल, लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ. स्पेशल लॉ वे लॉ होते हैं जो पार्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए जाते हैं. जैसे यहाँ पे सीता एक्ट है, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, ठीक ना. अब ये क्यों है स्पेशल है? क्यों स्पेशल है? बिकॉज पर्पज ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्ट इज to prevent the prostitution, to protect the fallen women, to protect the women, to protect the girls. तो यहाँ के पर्पज में गर्ल और वुमेन अलग अलग हैं, इनका एज अलग अलग कर दिया गया, और आईपीसी में एक ही एज है. इस तरह के पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, इसलिए यहाँ पे दोनों वर्ड को डिफाइन कर दिया गया, वुमेन एंड गर्ल्स को. तो हमने क्या किया कि उसका क्वेश्चन ये था, तो हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया. 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है, जैसे माइनर प्रोस्टिट्यूट, मान लीजिए माइनर प्रोस्टिट्यूट को हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं. वह और लड़की, ये वह वुमेन जिसकी उम्र 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, और वहां पे उसके साथ प्रोस्टिट्यूशन होता है. इन दैट पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस दैट विल always be punishable, that will be illegal. ये प्रेजेंट टाइम बता रहा हूँ. रीजन क्या है? यहाँ पर हमें अगर एक सेक्शन लेते हैं, आईपीसी का कोट कर दे अगर सेक्शन को, 1 मिनट, वेट कहाँ गया? हाँ, अगर हम आईपीसी का कोट कर दे एक सेक्शन को, मान लीजिए कि हम आईपीसी का सेक्शन 375 का क्लास 6 ले लेते हैं.
क्लास 6 में 0.6 नंबर, उसमें कहता है कि इफ एज ऑफ द गर्ल इज बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स 18 ईयर्स, हर कंसेंट इज इमेटेरियल। इट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट गर्ल शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए रेप। मतलब कि 18 साल से कम की लड़की है, वो चाहे कंसेंट दे या कंसेंट न दे, उसके साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो आपको आईपीसी के अंतर्गत भी पनिश किया जाएगा और वही मैटर आपको पोक्सो के अंतर्गत भी चला जाएगा। तो जब आईपीसी के अंतर्गत वो इलीगल है, पोक्सो के अंतर्गत इलीगल है, ऑफेंस है, उस मामले में तो प्रोस्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन होने का या लीगल होने का सवाल ही नहीं उठता। तो हमने यहाँ पे माइनर वुमेन के मामले में यहाँ पे ऑफेंस है, ये रीजन क्या है, हर कंसेंट इज इमैटेरियल। अब हम मेजर वुमेन की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई औरत जिसकी उम्र 22 साल है या 25 साल है, अब उसके साथ अगर प्रोस्टिट्यूशन का मैटर आता है तो क्या होगा। अब उसके साथ प्रोस्टिट्यूशन का मैटर आएगा, दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये है कि विदाउट कंसेंट, मान लीजिए किसी आदमी ने उसको कहा कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, चलो दिल्ली में हम शादी करेंगे। शादी करने के लिए दिल्ली में लाया और ले जाकर के जीबी रोड पर उसको बेच दिया। अब उसके साथ मान लीजिए कि अखिलेश जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, whether that will be prostitution or not, in that matter Akhilesh will be punished. Why? Because that woman whose age was 22 years, her consent was not free consent. Someone has kidnapped and sold and someone have purchased. In that times, in that types of circumstances, that will be an offense. In that case, only Akhilesh shall be punished, and woman, that is the victim, she will not be punished. So that's why if a major woman who had not given the consent and anyone is making the prostitution, that will be sexual intercourse, that will be an prostitution. अब हम आते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये ऑफेंस है विदाउट कंसेंट में, ठीक ना, वो हमेशा। अब ये दो पॉइंट पर हम क्लियर हो गए। अगर माइनर के साथ होगा या विदाउट कंसेंट के साथ होगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पी में जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन होगा, और जब पी में जाएगा तो ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी बनती है जब वो कंसेंट दे देती है, तब अगर कंसेंट के साथ अगर उसका रिलेशन बनता है तब क्या होगा। कंसेंट के साथ उसका रिलेशन जब बनता है तो उसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पार्ट में यह ऑफेंस होगा, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज आपका नहीं चलेगा। लेकिन सेकेंड पार्ट में ऑफेंस नहीं होगा, मतलब इस पार्ट में पी होगा। इसका मतलब तीन सर्कमस्टांसेस हो गए जहां पर कि ए प्रोस्टिट्यूट ऑफेंस हो रहा है। पहला ये माइनर के साथ, दूसरा विदाउट कंसेंट के साथ, तीसरा अगर वो किसी और के साथ मिल करके इसी का बिजनेस कर रही है, एक कमर्शियल पर्पज के लिए काम हो रहा है, तो भले ही वो कंसेंट दे चुकी है लेकिन वहां पे वो इलीगल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कई बार पार्टी होती है, तो वहां पे जैसे नेताओं की पार्टी होती है तो क्या होता है, वही बड़े बड़े होटल होते हैं तो उसमें लड़कियां जाती हैं, तो जब वो जाती हैं तो उसमें पूरा एक रैकेट इन्वॉल्व होता है। हाँ सर सर वो लोग इंतजार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए और रिक्वेस्ट। वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाता है, ऐसा सेटिंग करवा हाँ रखा हूँ। कोई सर, वो ग्रुप में लिख नहीं नहीं रहे हैं लिखने अभी। दो, सब फर्जी लिखता है, सब भरोसा मत किया करो तुम। अच्छा लगता है कि मुझे ऑन करना पड़ता है इसीलिए अब आ रहा है, सही कह रहे हो यार। हाँ सर बहुत बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। लग रहा है ना कि जब स्क्रीन हम उस पर रहते हैं ना तब वो नहीं आता है, जब शेयर कर देते हैं स्क्रीन तब हमें स्पेशली एडमिट करना पड़ता है। नहीं सर, जिनके पास इंस्टीट्यूशनल आईडी है उनका ऑटोमेटिक एंटर होता है, तो बाकी को कब तक चलता रहेगा। चलो हो गया। हाँ पूरी की पूरी क्लास बाहर है अभी। हाँ सर, अब आ गए से सारे। चलो ठीक है, तो तुम वैसे ही बाहर रहोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, फोन थैंक यू सर। करिए। हाँ हेलो, हाँ चलो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, देखो पता ना कैसे।
ठीक ठीक ठीक, अब हो गया सब, देखो पूछो। एक सेकेंड। सर अभी बच्चे हैं थोड़े बहुत, सर मैसेज आ रहे हैं कि हम ऐड नहीं हुए अभी। जानते हो ऑनलाइन में यही मजा नहीं आता है। हाँ सर। पहले तो सोचने में, बार बार सोचने में कि क्या सोचें, कौन रिकॉर्ड कर रहा हो क्या है, तो बनियाना है, अंदर के बॉडी दिखा दे रहा है सलमान खान की तरह। हाँ अरे भाई देख लो, अब कौन है सर? कटरीना कैफ नहीं है, कहाँ ना दीप नारायण पांडे। दीप नारायण बोलिए। बोलिए मत, चीज आप करो नहीं तो ब्लॉग मार देंगे मजाक मजाक में। क्या हुआ है? हटाओ इसको, वीडियो ऑफ कर लो। हाँ in that point matters, come to the point here. अबे यार, हाँ। So in that point, and the next point, that is that if she was involved with the business purpose, commercial purpose, that is the illegal. But one condition is then when it is illegal. What is the condition when the prostitution is legal? Condition is that if she has given the consent, and with mutual consent, she is doing that work for the livelihood rather than for the commercial purpose. In that particular circumstances, and there is no involvement of any other racket, in that matter that will be legal. It means I read several provisions. If you, I will discuss later on, but with this chart, the point is very clear. In 3 circumstances, it is illegal. Only in 1 circumstance, this is illegal. Come to the point. Gaurav Jain versus Union of India and others. This is the landmark judgment for the protection of the children of the prostitutes. And that point, Honorable Justice K. Ramaswamy have wrote the judgment. And that judgment was written on the 9th July 1997. What was the fact of this case? Fact of this case was that Gaurav Jain was the advocate. Gaurav Jain was the advocate. In the previous class, I was discussing the Vishaljit. Vishaljit was also an advocate. So Gaurav Jain was advocate. What happened one day? One day, one article was published in the India Today. India Today is a national magazine. In that magazine, one article was published. What was the name of the article? A red light trap. Society gives no chance to prostitutes of Spain. उस आर्टिकल में कहा गया था कि जो रेड लाइट एरिया में जो बच्चे फंस जाते हैं, मतलब जो बच्चे प्रोस्टिट्यूट के बच्चे पैदा होते हैं, वहां के उनके बच्चे जब सोसाइटी में आते हैं तो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको सुधरने का, संभलने का एक भी मौका वहां पे नहीं देती है। तो इस तरह के आर्टिकल जब उन्होंने पढ़ा तो इसके बेसिस पर उन्होंने एक PIL फाइल कर दिया। PIL was filed in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India. The fact is very clear. After reading articles published in the India Today, Honorable Advocate Mr. Gaurav Jain filed a case under Article 32 seeking directions for the protection of the interest of the children of the prostitutes. What was the point? What was the issue? Here I wanted to clarify that in that argument, Mr. Gaurav Jain only argued on only one issue, but Honorable Supreme Court, after deciding one issue, said that merely deciding one issue is not sufficient. This is a very burning topic. It needs to be discussed a lot. That's why Supreme Court discussed something more. मतलब कि जितना कि आर्गुमेंट किया नहीं गया था, जितना कि डिमांड नहीं किया गया था, उससे ज्यादा जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्कस किया और उसके बाद इस जजमेंट को लिखा गया था। एक इशू क्या है सुप्रीम कोर्ट का? एक इशू, व्हाट वाज द इशू? मेन इशू वाज दैट वाज द डिमांड ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस ऑनरेबल Gaurav Jain. His demand was that
separate educational institutions for the children of fallen women feasible? According to him, separate educational institutions should be established for the giving instructions to the children of the prostitutes. इनकी डिमांड थी कि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सेपरेट अलग अलग जगह पे सेपरेट स्कूल खोला जाए. Whether such types arguments should be accepted by Honorable Supreme Court? Honorable Supreme Court said that Mr. Gaurav Jain, you are a learned advocate of the Supreme Court. Your issue, you have raised very good issue. We highly appreciate your argument, but your argument is not acceptable. Why? Because once a separate educational institutions will be established for the children of the prostitutes, it means that will not give opportunity to mingle in the society. कहना यह था सुप्रीम कोर्ट का, आप डिमांड कर दे रहे हो कि हर एक रेड लाइट में एक स्कूल होना चाहिए, उस स्कूल में सिर्फ प्रोस्टिट्यूट के ही बच्चे पढ़ें, दूसरे बच्चों को अलाउ न किया जाए. उसमें क्या होगा कि जो बच्चा उस स्कूल में जाएगा उसकी और ज्यादा ब्रांडिंग हो जाएगी. मतलब फ्यूचर में भी जाकर कहीं बोल देगा, वहां जब पढ़ करके निकले और बोल दे कि मैं स्कूल से पढ़ा हूं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि ये इसका मतलब कि प्रोस्टिट्यूट का बेटा है या बेटी है. तो वहां पे उनको सोसाइटी में आप मौका नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनको आप सोसाइटी से अलग कर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन दैट पार्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज ए बेटर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू सेंड इन कॉमन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन में सारे बच्चे आते हों, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे दलित का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे नॉर्मल वुमेन का हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट का हो, अगर सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर के पढ़ेंगे तो सारे बच्चे जो प्रोस्टिट्यूट के बच्चे हैं सोसाइटी में मिंगल कर जाएंगे और धीरे धीरे सोसाइटी में अपने लाइफ को रन कर जाएंगे. अभी कुछ दिन पहले ही, गलती से या सही से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सीएलसी के वो आया, सेक्शन अलॉटमेंट का मैटर आया. सेक्शन अलॉटमेंट में क्या हुआ था सीएलसी के, एक मतलब जैसे सेक्शन ए था, ए बी सी में सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सेक्शन अलॉट किया गया. मान लीजिए कि अगला सेक्शन जैसे मान लीजिए था EF था, उसमें ओबीसी को कर दिया गया. मान लीजिए अगला 2 सेक्शन एससी का कर दिया गया, अगला 2 सेक्शन एसटी का कर दिया गया, अगला 1-2 सेक्शन ईडब्ल्यूएस का कर दिया गया. अब उसमें बताइए कि सोसाइटी में हारमोनियस कल्चर डेवलप होगा कि सोसाइटी और डिवाइड होगी? अगर इस तरह से हम बाइफर्केशन होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि गलती से हुआ होगा, ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी में कोई नहीं चाहता है. इस तरह गलतियां कई बार हो जाती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है. इसलिए कई लोगों का मैसेज आया कि आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं. पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका यूनिवर्सिटी के साथ डिस्प्यूट है तो हम यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं. और दूसरी बात, अगर आपके अपनों के बीच में डिस्प्यूट है, चाहे जनरल कैटेगरी को लेकर, चाहे SC ST OBC का, उसमें हम साथ नहीं देंगे. आपको जितना फाइट करना है फाइट कर लीजिए, मुस्कुरा के चले जाएंगे. हम आपका तब साथ देंगे जब आपका किसी और यूनिवर्सिटी के साथ हो, या किसी और कॉलेज के साथ हो, या कहीं और बाहर आपका डिस्प्यूट हो, तब आप हमें बुलाइए. जब बुलाएंगे तब मैं साथ में खड़ा हूँ. बाकी इस तरह के मैटर में हम अपना ओपिनियन नहीं देते, न ही हम किसी का इस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं. इस तरह का हो जाता है कभी कभार, कोई बड़ी बात नहीं है. इसी बात को लेकर के अब इमेजिन करो कि अगर इस तरह का बाइफर्केशन कर दिया जाए, तो मैं मान लीजिए ओबीसी का टीचर हूँ, अब मैं जान जाऊंगा कि मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे सीधा रिजर्वेशन का विरोध करूंगा. लेकिन जैसे ही मैं जान जाऊं कि SC ST के क्लास में जा रहा हूँ, सीधा कहूंगा कि हाँ, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों को हथियार उठा लेना चाहिए, दलितों को कत्लेआम कर देना चाहिए. तो हमारा क्या, तो मेरे पूरे तरह से आदमी क्या करेगा, सब कुछ डिवाइड हो जाएगा. जैसे ही बाल बच्चा बताएगा कि तुम्हारा सेक्शन कौन सा है, तो जैसे ही बोलेगा कि सेक्शन E है, वो तुरंत कह देगा कि ये दलित है. तो हमारे कहने का मतलब यही बात यहाँ पर अप्लाई हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम सेपरेट स्कूल एस्टेब्लिश कर देंगे, सिर्फ उसमें प्रोस्टिट्यूट का बच्चा ही पढ़ेगा, उसके साथ और इनजस्टिस हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू सेंड देम इन ए कॉमन स्कूल सिस्टम. That's why first argument was rejected and it was decided that no, it is not feasible
feasible माने practicable. It is कोर्स वर्क क्लास में जनरल कीजिए. कौन भाई लिख रहा है? व्हाट्सएप मत करो भाई. अच्छा. In separate educational institutions for the children of हाँ, it was not feasible. Now point is clear. Okay. After deciding this issue, what were the points discussed in instructions? देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ. I write something. Generally, I take the cut paste from the original documents, from the original judgment, and try to teach. So what happened? According to the Supreme Court said that prostitution is going on since ancient time. Prostitution is not new things. But what happened in the आगे बढ़ना चाहूंगा. In this case, it was said that generally it was treated that women are frailty. Frailty means very weak. Court said that in the ancient time, in the medieval time, women were treated as a frailty, very weak. For example, even in the developed country, UK, USA, even in these countries, women were given voting right in very late. In the UK, first time voting right was given in 1999. 1919 ईस्वी में पहली बार ब्रिटेन में वोटिंग राइट महिलाओं को दिया गया. In several countries, women were not treated as a legal personality. They were treated as a goods. That's why husband was authorized to sell her wife. Why? Because wife was treated part and parcel of the woman, and that was treated as a goods of her husband. That's why in the IPC there is a section 27. 27 always read along with section 378, 379 IPC. All the feminists always oppose 27. Why are all the feminists oppose section 27? Because once you read the section 27, according to that section, it becomes very clear that woman is equal to the servant, employee, like that. So my point is that that's why always section 27 is criticized. So that's why in this case, Honorable Justice quoted that earlier time women were treated as a frailty, but there are several examples when the women lead the country. For example, Indira Gandhi. Everyone knows about the Indira Gandhi. Pakistan was divided into two parts. Everyone well known about the Bangladesh and like that. Margaret Thatcher, great Prime Minister of Britain. Sri Mao Bandaranaike, she was the great leader of the Sri Lanka. And Golda Meir, she was the Prime Minister of the Israel. According to Supreme Court in that case clearly said that several earlier time situation was something, but at present time situation is different. Still problem is same. Although these are some women for examples, but condition of women is not so much good. कोर्ट ने कहा कि कंडीशन बहुत ज्यादा अभी बेटर नहीं हुआ है. That's why Supreme Court constituted a committee. What was the name of the committee? V.C. Mahajan Committee. V.C. Mahajan Committee was constituted under the leadership of the V.C. Mahajan. He was the advocate of the Supreme Court. Other persons were member of the committee, R.K. Jain, Saraf, and other members were elected. It means first time Supreme Court constituted a committee to analyze condition of the children of the prostitutes and prostitutes like this. Committee submitted its report. On the basis of report, Supreme Court decided following important point. History of prostitution. What is the history of prostitution? History of prostitution is that it is the prevailing since ancient times also. What was the problem? Problem was that prostitute has always been object. Object means she was always treated goods and she was never treated as a complete human being. That's the problem. In the brief, you can write. What is the reason of prostitutes? This is, I wanted to say here that this is the most landmark judgment. On this point, everything has been discussed. With the help of only 3 or 4 cases, you can write article.
and the condition of the prostitutes. So that's why what was the reason of the prostitutes? Supreme Court said that main reason of the prostitute is the poverty. Second reason is that illiteracy. If you are illiterate, you cannot analyze, you cannot read where you are going, like this several problems. Sometimes coercive trapping. What is the coercive trapping? Suppose that a girl whose father is very rich, she is not poor. She has completed LLB degree. She is a very talented. She has know about everything. But what happened? One day she was kidnapped, and due to the force, she was compelled for the prostitution. That is the third category. First is the poverty, second is the illiteracy, third is the coercive. Fourth is the scare of social stigma. What is the scare of social stigma? Sometimes what happens, suppose that a girl has been raped by the accused, and once you know that, once a society knows that she had been raped, society is worst. Society never support to the victim. They started to blame that girl. That's why in such type circumstances, girls started to lead some other life. That's why fourth condition. Fifth is the luxurious style of life. This is the very important point. इन द प्रीवियस क्लास में, अपने प्रीवियस क्लास में भी आपको बता रहा था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जैसे बहुत ही पिछड़े एरिया से जब लड़कियां जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में आती हैं तो लग्जरियस लाइफ उनको जब दिखाई देती है और उनका फैमिली इनकम सपोर्ट नहीं करता है। अब उस लग्जरियस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा न्यूज आता है कि किसी यूनिवर्सिटी की लड़कियां इस होटल में पकड़ी गई, यहाँ की लड़कियां ऐसे पकड़ी गई, बहुत सारी इस तरह की चीजें आती रहती हैं। तो लग्जरियस स्टाइल ऑफ लाइफ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आई एम नॉट सेइंग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इज द रिसेंट ट्रेंड। रिसेंट ट्रेंड मींस 1997 का जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि रिसेंट टाइम में देखा जा रहा है, कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने के लिए कई लड़कियां जो हैं इस प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लीड कर रही हैं। अब देखोगे शुरू में वो आएंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं किसी खान से निकली हुई हैं, और एक आध साल बाद देखोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कि मल्लिका शेरावत है कि कोई और है। So that is something different point is that luxurious style of life, that is the very worst things which is going on in the consumerism, like that point. So these are 5 points. First is the poverty, illiteracy, coercive, social stigma, luxurious life of style. And Honorable Supreme Court that what is the age? What is the age for entering the prostitution? Honorable Supreme Court said that generally girls who belong to 16 to 19 years, they enter in such as activity. And what is the, up to what extent they can enjoy the life of the prostitution? Only up to the near about 35 years of age. After 35 years of age, no one is going to pay amount. मैं एक और मूवी बताना चाहूंगा यहीं पर, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवी है, चांदनी मूवी है। चांदनी मूवी में यही दिखाया जाता है। चांदनी मूवी में जब वो यंग रहती है, मतलब कि 18-19 साल की रहती है, तो बहुत सारे इस तरह के मैटर आते रहते हैं, सब कुछ होता है। उसकी उम्र जब 30-35 साल हो जाती है, जब वो क्रॉस कर जाती है, फिर सोचती है कि नहीं चलो मैं प्रोस्टिट्यूशन की लाइफ खत्म कर देती हूँ। जब वो रिटर्न करती है तो रिटर्न करने के बाद ये सिचुएशन आ जाता है कि उसके हस्बैंड का बाद में डेथ हो जाता है। अब वो उसका बेटा जो होता है कुछ वजह से जेल में चला जाता है। अब वहां पे उसके बेटे के साथ सुडोमी हो जाती है, वो क्रिमिनल बन जाता है। अब वहां पे इसकी एक बेटी रहती है। अब उस बेटे को छुड़ाने के लिए वो लेडीज जो है फिर से प्रोस्टिट्यूशन की तरफ रिटर्न करती है। जब प्रोस्टिट्यूशन की तरफ रिटर्न करती है, जहाँ कई साल तक प्रोस्टिट्यूशन का काम कर चुकी रहती है, तो अब कहता है कि नहीं अब तुम्हें कोई यहाँ पैसा तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए कोई पैसा देगा ही नहीं। अब उसकी नजर जो मैनेजर की होती है, ब्रूथल मैनेजर की जो होती है, उसके लड़की पे चली जाती है। अब उसको कहता है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तुम्हें अपनी लड़की को इन्वॉल्व करना होगा। जो ग्राहक भी आते हैं उसको साइड लाइन कर देते हैं। वो लड़की जो है, उसकी छोटी सी बच्ची जो है 17-18 साल की उम्र की रही होगी या 15 साल की, ये बात छुप करके देखती है।
अब वो देखती है कि मेरी माँ और भाई की समस्या देख करके वो चुपके से फिर से उसी प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है। तो पूरी एक लाइफ जो है, पूरी दर्दनाक कहानी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कहा है कि 16 से 19 साल की उम्र में लड़कियां इंटर करती हैं और या उनको एंट्री दिलाई जाती है ब्रोकर के द्वारा, पिम्पकिन के द्वारा, ये सब के द्वारा, लेकिन लगभग 35 साल आते आते उनका जो जो चार्म होता है एक यंग का, वो खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो प्रोस्टिट्यूशन से उनका काम खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड टू मैनेज ब्रोथल्स। अब वो क्या करते हैं कि अब वो ब्रोथल को मैनेज करने लगती हैं। आर लीड्स समथिंग लाइक दिस। So what are the problem of children of prostitutes? That is the basic point. Problem of the children of the prostitutes. अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लेना चाहते हैं। Everyone is a human being. She is a prostitute. It means he must also be treated like another woman. Like the same situation, children. A children who born from the prostitutes. What is his fault? अगर एक बच्चा अगर प्रोस्टिट्यूट से पैदा हो जाता है तो उसकी क्या गलती होती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। ही इज लाइक अदर चिल्ड्रन, बट व्हाट हैपेंड? प्रॉब्लम अराइज बाय बर्थ, लैक ऑफ द फादर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन द प्रोस्टिट्यूशंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्टिट्यूशंस एंड गर्लफ्रेंड? कई लोग पूछते हैं सर गर्लफ्रेंड और प्रोस्टिट्यूट में अंतर क्या होता है? गर्लफ्रेंड और प्रोस्टिट्यूट में अंतर, देखो मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक पॉइंट को मैं ध्यान रखना चाहता हूं। whenever there is a girlfriend, she always have desire or hope of the marriage. If she has not desire or hope of the marriage, in the modern time you can say that she wanted to live in living relationship, but I do not recognize like that points. The first point is that first difference is that in case of girlfriend, she has desire of hope, desire or hope of. Second point, regarding the prostitute, she has no desire or hope of marriage. Second point is that girlfriends, whatever she do only due to the love and affection, rather than for the money. But in the prostitution, she is the needy woman. She do not due to the love and affection. She do only for the money. These are the basic difference between the prostitutes and girlfriends. So what is the point is that in such type circumstances, first of all, if the children have taken born, first problem is that he has no father. He has no father. Once he has no father, who will take security, care and guidance? आप इमेजिन करिए कि अगर किसी की माँ, किसी के पिता ना हो, उसकी क्या इज्जत होगी? कौन कितना केयर करेगा? तो पहली समस्या उस बच्चे की यही से स्टार्ट होती है कि फादर नहीं होता है, और जब फादर नहीं होता है उसका सिक्योरिटी, केयर एंड गाइडेंस नहीं हो पाता है। सेकेंड प्रॉब्लम उसका ये होता है कि सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। अब मदर के पास क्या होता है प्रॉब्लम कि जब वो अकेले रहती है तो चलो कम बेसी हुआ किसी तरह मैनेज कर लेती है, लेकिन जब प्रोस्टिट्यूट को बेबी हो जाता है एट दैट टाइम उसकी प्रॉब्लम और इंक्रीज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई, एज भी बढ़ गई, बच्चा भी हो गया और आपका प्रोस्टिट्यूशन में इनकम भी कम हो गया। यहाँ पे मदर होने के बाद आपको दुधारी तलवार चलती है। इसी तरह से जैसे मूवी है जब आप देखते हो तो शादीशुदा होने के बाद जनरली हीरोइनों का करियर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब क्या है, जो दर्शक होता है अनमैरिड के सिचुएशन में देखता है कि मैं ही इसका हस्बैंड हूँ। वाई सलमान खान इज स्टिल मच मोर पॉपुलर इन कंपेरिजन टू अदर, क्योंकि लड़कियां जब उसको देखती हैं तो उसको लगता है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड, मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब सच्चाई कितनी कहाँ तक जाएगी वो अलग बात है। दैट्स व्हाई दिस इज द मैटर ऑफ द इंक्रीजिंग द पॉपुलरिटी लाइक दिस। Economic hardship, I told earlier, lack of facility to meet basic needs. This is related to the same point. Unhealthy social environment. Society never ready to accept. Other point is the malnutrition. Malnutrition, economic hardship, malnutrition, everything is point is same. Another important point is that coercive attempts by managers of brothels.
अब जब प्रोस्टिट्यूट अपने बेबी को लेकर के जाती है तो मैनेजर जो होता है ब्रोथल्स का, शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक केयर योर बेबी, सी or he is engaging you only for the money. That's why she started to misbehave you. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जब हम अपने घर पे खाना बनाने वाली को रखते हैं तो पहला एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई जब तुम खाना बनाने के लिए आओगी तब तुम अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर के नहीं आओगी। अगर लेकर के आओगी भी तो या तो बाहर बैठा दोगी या एक कोने में यहाँ पे बैठाओगी। वही काम मैनेजर भी करता है। That's is the same situations. Other point is that taunting due to life by surrounding. You can read yourself, counseling, guarding, motivation. Last important point is that this is the landmark point. They are deprived of their right to life, normal life, for no fault of their own. वह बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है, नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, उसकी अपनी खुद की भी गलती नहीं है, फिर भी इस तरह के नॉर्मल लाइफ से डिप्राइव हो जाता है। और अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है भारत में कि 65% वुमेन्स हु हैव फॉलन वुमेन, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैव यूज्ड फॉलन वुमेन रादर देन प्रोस्टिट्यूट्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूट की जगह फॉलन वुमेन को कंटिन्यू कोट किया है। फॉलन वुमेन जस्ट इक्वल टू द प्रोस्टिट्यूट्स। हियर 65.5% population of the prostitutes is the married. That is the big problem. एक बात और मैं बताऊं, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम बता देता हूं कि ये 65% का रेशियो कैसे बढ़ जाता है। इसका एक रीजन मैं पूरी जानकारी के साथ बताता हूं। होता क्या है कि जैसे जब प्रोस्टिट्यूट के पास आप जाते हो, प्रोस्टिट्यूट नो ईच एंड एवरीथिंग, तो पहला एक कंडीशन उसका रहता है कि यू विल नॉट यूज द यू हैव टू यूज द कंट्रासेप्टिव। पहला कंडीशन रहता है कि तुम्हें कंडोम यूज करना होगा। अब क्या होता है कि प्रोस्टिट्यूट्स, उसका तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बेचारी वीक है, उसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब जो कस्टमर होता है, सी स्टार्टेड टू गिव मच मोर मनी, अब तुरंत कहता है कि चलो 200 रुपया और ले लेना। अब होता क्या है कि कस्टमर के लिए तो 200 रुपया बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, 500 रुपया तो मायने नहीं रखता, बट फॉर दैट पुअर लेडी दैट इज ए बिग मनी। Once she allows sexual intercourse without the condom, she became the pregnant. जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अब उसको मालूम ही नहीं रहता है। अब इतना प्रेशर रहता है, मतलब कि लाइवलीहुड के लिए, कि अब वो कंटिन्यू सेक्सुअल इंटरकोर्स के पास टाइम ही नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है, बाकी काउंसलिंग ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अब वहां पे उसके पास उधर हो ही नहीं पाता है, एबॉर्शन करा ही नहीं पाती है। और कुछ प्रोस्टिट्यूट्स का ये प्रॉब्लम है कि सी इज ए वुमेन होने की वजह से प्रेग्नेंट होने के बाद उनमें मदरहुड की जो भावना होती है वो उत्पन्न हो जाती है। अब उसकी लगता है कि चलो कुछ भी हो, सी और ही इज माई बेबी, आई विल टेक नर्चरिंग। देखो एक बात बता दूं, जेंट्स और वुमेन में ही बेसिक अंतर है। जेंट्स जो मेल होता है ना, बहुत ही क्रूअल होता है एकदम, लेकिन वुमेन जो होता है उसका एक सॉफ्टनेस जो होता है ना, मदरहुड कहीं ना कहीं वापस आ जाता है। जब प्रेग्नेंट होने के बाद मदरहुड वापस हो जाता है तो सी बिकम्स like this. That's why there are two problems. First problem is that customers generally in 99.9 cases they never ready to use the contraceptive. And second problem is that woman comes under the category of motherhood and she becomes ready for that problem. So that's why these are the basic problems. Now come to the point, human rights for all. Human rights for all, it means that prostitutes, first of all, she is a woman, then prostitutes. First of all, she is a woman. If she is a woman, why not every human right should be available for her? So that's why point is that even the prostitutes have every human rights, every fundamental rights. States is responsible at the same footing as far as to the normal woman. That's why that is the point, and she must be given to the equal opportunity like the other, so she can rehabilitate her life. Now come to the preamble of the conclusion. When I was discussing the Biswaljit case,
At that time, I discussed only few articles. I did not discuss the preamble. I discussed there only limited, but here start the preamble of the Constitution of India. I have written the first word, prostitute is equally a human being. Prostitute is equally a human being. Citizen means citizen. Whether he is a poor, whether he is a rich, whether he is a OBC, Dalit, EWS, general, whatever is that. First of all, he is a human being. Second, he is a citizen. Then you can classify according to your idea. That's why, first of all, the right said that rights for all. We having solemnly constitute India into sovereign socialist secular democratic republic like that, and justice to all करके यूज आता है कि to all citizens it means every citizens irrespective of religion, race, caste, sex. Justice for all. Justice means justice social, economic and political. Justice for all means prostitutes also. Honorable Supreme Court said that socio-economic justice must also be provided to the prostitutes. It means states should not discriminate on the basis of prostitutes. Come to the Fundamental Rights DPSP International Conventions. Part 3 talks about the fundamental rights. In the fundamental rights, only the word use, person, man, woman, children, it never talks about the prostitutes like that word. It says that according to Article 14, Honorable Supreme Court have discussed all the fundamental rights, several DPSP, several constitutions like these points. So what is the fundamental rights? I will discuss one by one. Fundamental rights. For example, Article 14. Article 14 is available for everyone. State shall not deny any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. Article 14 says that person, state shall not deny to any person. Person means in the constitution you will read everything. So it means prostitute is also come under the category of person. So that's why Article 14. Article 15 class 3, nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions for the protection of the interest of the children and women. आर्टिकल 15 क्लास 3 का वर्ड कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल. तो नथिंग का मतलब है क्लास 1 और क्लास 2 जो है आर्टिकल 15 का वो इफेक्ट नहीं डालेगा, स्टेट के पावर को कर्टेल नहीं करेगा. इट मींस स्टेट कैन मेक स्पेशल लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन एंड वुमेन. चिल्ड्रेन मींस चिल्ड्रेन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स आल्सो. वुमेन मींस एवरी वुमेन्स. प्रोस्टिट्यूट्स also come under the category of women. 16 class 1 equal opportunity for all. Article 23 right against exploitation. Article 23 employment into the hazardous industry, mines and any others like similar thing. Article 38, 39, 45, 46 all these things. Article 38 talks about the distribution of property so that equality can be established, and Article 39F also says that state shall ensure that no one shall be exploited on the basis of economic, and morality will be maintained like this. Article 45 talks about, earlier it was talking about the educations to 16 to 14 years, later on converted into the DPSP or fundamental rights. मतलब right education है ना, देखो at that time that was the DPSP. During the in 1997 that was the DPSP. During the Honorable Prime Minister Mr. Atalji, 86th amendment was amended, Constitution was amended, and that became fundamental rights. At present time situation is that Article 45 takes care of those baby who is below the age of 6 years. 46 also talks about the protection of the weaker sections like that one. Come to the Universal Declaration on the Human Rights. Honorable Supreme Court, what happened? Honorable Supreme Court, after discussing the some issue, introductions, reason, and hardship, preamble of the Constitution,
Article 14, 15, 16, 21, like this. Even 21 I have put it here is that, oh, sorry for that. यहाँ मैं भूल गया हूँ. Article 21 होना चाहिए था. Article 21 is the most important here. Parth, if you possible, note down, I will amend it. Article 21 clearly says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. It means no person, everyone, including the women. It means prostitutes have also right to life with dignified life. It means no one can be compelled to be prostitutes. एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे. एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था. उस जजमेंट में क्या हुआ कि एक लेडी प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी. अब उसमें क्या हुआ कि उसका एक दिन इंटरेस्ट नहीं था. महाराष्ट्र का केस था लगभग. पुलिस का शाम का टाइम रहा होगा, वो गया. अब वो प्रोस्टिट्यूट को कंपेल करने लगा कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा. अब प्रोस्टिट्यूट ने डिनाई कर दिया कि नो, आई एम नॉट रेडी टुडे, आई एम नॉट रेडी, गो. बट he was not ready to leave. He tried to use the force. Later on, that prostitute filed a case against that erring police officer. Argument of the police officer was that she was the prostitute, that's why I was forcing her. Honorable Supreme Court said in that particular case, even the prostitutes has a right to life, and at the same time, she has a right to be live with dignity, and no one can compel, and she has sole authority over her own body. No one can compel her. It means mere to be prostitute doesn't allow everyone to use her body against her consent. So that is the landmark judgment on the point of Article 21. It means even she is a prostitute, but no one can compel. She has a right to decide how to utilize her own body. Honorable Supreme Court also discussed UDHR, Universal Declaration on Human Rights, 1948. As you know that just after the Second World War, every country realized to enact some for the protection of the human rights, and UDHR was passed and it was accepted by every country. As you know that there is no mechanism. What is the basic problem of the UDHR? In the international international law, everyone have read about the UDHR. In the UDHR, this is like a moral guidance. It has no effective mechanism to enforce the rights in case of violation of that rights. Although whatever rights have been mentioned in the UDHR have the moral value, it doesn't have effective machinery to implement this like other conventions. Still it is irrelevant, and it is like a constitution for all over countries, and every country respect these rights which have been mentioned under the UDHR. First right is that everyone is born free, and everyone has equal in dignity and rights. This is the most important point. Everyone is born free. एक बात बहुत ही पॉपुलर हुआ था, उसमें कार्ल मार्क्स ने जब इसको आह्वान किया था तो उसमें यही कहा गया था. उसका मूवमेंट जब चला अमेरिका में और रसिया में, फ्रांस में जब क्रांति हुई, बाद में रूस ने अपना आइडियोलॉजी दिया, तो सबका एक यही आर्गुमेंट था कि अगर आदमी बाय बर्थ फ्री होता है, तो जैसे फ्री जब बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम तो उसे नहीं मालूम है कौन सा जाति है, कौन सा धर्म है, क्या है क्या नहीं है. अब मान लीजिए कि एक वुमेन है, आप उसको कहीं जंगल से आती है, अब उसकी बेबी बर्थ हो गया. अब बेबी के बर्थ के बाद जैसे जहां पे कम्युनिटी रहती है उसके हिसाब से तुरंत आप डिसाइड कर देते हो कि तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो. भाई, तब इट मीन्स कास्ट is the creation of the society to manipulate
and enjoy their own interest. It is not God gifted. It is not God gifted. That's why everyone criticize caste system. In that point, it was said that everyone is free and everyone has equal rights and dignified. Everyone must be given opportunity. Everyone, no one should be discrimination on the basis of race, color, sex, language, religion, political, and other like national like this point. These points are important. You should read each and everything. Article 3 talks about life, liberty, and security. As you know that our Article 19 to 22, also talks about the right to life and liberty, like this point. The same several times you can read the UDHR. I am not going to discuss each and every time because shortage of time. Some other point was that Declaration on the Rights of the Child was some specific law, some declaration was also accepted to protect the right of the child. And even the later on, one more convention have been accepted, Convention on the Right of Child in 1989. एक और कन्वेंशन आया है, कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989 का है. Other convention is for the protection of the all forms of discrimination against women. You can write all these things. In this case, what was the main point? What is the option? How to? Question was that this is the question of this part. What is the method to rescue, rehabilitate, and protect the children and the prostitutes like this? The court said that triple C is the method. What is the method? Court said that triple C is the method. Triple C, what is the triple C? Court said that first of all, you should use rescue operation. You should use rescue operation. If rescue operation and एक minute, see something is there. First of all, you have to counseling. You should make the counseling of the victims. Second is that if counseling is not effective, you can use the cajoling by persuasion, and even this is not effective. इसका मीनिंग देख लेना यार, मैं लास्ट टाइम में देखना भूल गया था कैजुअलिंग क्या होता है, ठीक ना, लास्ट टाइम में भूल गया था, अभी मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम क्या होता है. अच्छा, मतलब मतलब काउंसलिंग कन्विंस करना, कैजुअलिंग बाय परसुएशन मींस कन्विंस करना दैट समथिंग विथ अदर मेथड, एंड इवन काउंसलिंग एंड कैजुअलिंग इज नॉट effective. Last option is the coercion. Last option is the coercions. The last option is very important. It can be utilized. What happened? एक एग्जांपल देता हूँ. हम लोग बीएचयू में थे और उस समय बनारस के मड़ुआडी में अब प्रोस्टिट्यूशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था, और प्रोस्टिट्यूशन में ये हुआ कि ऑनरेबल प्रोफेसर एमपी सिंह ने कुछ पर प्रोस्टिट्यूशन पे डिटेशन कराया. अब सर ने डिटेशन तो करा दिया प्रोस्टिट्यूशन पे, और सर जब डिटेशन कराए थे तो वहां पे लड़कों को मैंडेटरी था कि आपको विजिट करके आपके साइट को आना है. वहां पे कुछ लड़कों ने विजिट भी किया साइट को. साइट से जब विजिट किए तो कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन लड़कों ने मतलब लेकर के आए. वहां पे देखा गया कि कई लड़कियां हैं 15-16 साल की हैं, मतलब 18, 19, 20, 22 जो भी कंडीशन था, इस तरह कंडीशन था. सारा इंफॉर्मेशन आ गया सर के पास, हो गया. सर को भी मालूम था कि अगर पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो प्रोस्टिट्यूशन चलता है इसमें ब्लैक मार्केटिंग बहुत बड़ा होता है और सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा होता है. और मैं पिछले क्लास में भी कह रहा था कि जहां प्रोस्टिट्यूशन चलता है वहां पर अगर आप पोस्टिंग कराना चाहते हैं किसी पोस्ट के लिए, चाहे एसआई के लिए, चाहे जो भी हो, तो आपको कम से कम 50 लाख 1 करोड़ के हिसाब से देना पड़ता है. एक हमारे जान पहचान थोड़ा सा दूर के हैं, उनकी पोस्टिंग इसी जीबी रोड पर हुई थी, एसआई के लिए हुई थी. उनके 1 करोड़ का उन्होंने दिया था. मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, एकदम कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सब कुछ चलता है ऐसे ही. तो वहां पे सर ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कि उन सबों को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, और वहां पे बच्चों के साथ वो कर देते हैं, मतलब कि एक साथ जाते हैं और बच्चियों को सबको छुड़ा करके लेकर के आते हैं. सर की प्लानिंग थी. हम लोग तो फर्स्ट ईयर में थे, हम लोगों को तो बताया ही नहीं गया था कि हम लोग उतना
एडमिशन बच्चा लेता है उतना कहाँ से जानकारी रखता है, और टीचर के संपर्क में भी बहुत नहीं आता है, और रिलायबल भी नहीं रहता है शुरुआती दौर में। तो वो धीरे धीरे 3 साल बाद पता चलता है कि कौन कैसा है। तो वहां पे क्या हुआ, सर ने थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ एक प्लानिंग बनाया। थर्ड ईयर वाले थोड़ा सा मेच्योर भी होते हैं। अब सर ने क्या किया कि शाम के टाइम वहां पे एक ऑपरेशन चला जिसका नाम उन्होंने गुड़िया ऑपरेशन रखा था। जब वहां पे जब ऑपरेशन हुआ, और कम से कम भाई 200-250 लड़के तो रहे ही होंगे। अब सारे लड़कों ने, सबको तो मालूम ही था कहाँ कहाँ पे क्या है, कैसे कैसे नहीं, सबने एक साथ अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया छुड़ाने के लिए सारे बच्चियों को, लड़कियों को, तो वहां पे ये देखा गया कि कई लड़कियां रेडी थी कि नहीं हम चलो चलते हैं साथ में, हमें यहाँ नहीं रहना है। उसमें कई जो थी एकदम जिद पर अड़ गई कि नहीं हमें यहाँ से जाना ही नहीं है। उनका कहना यह है कि अगर ये बताओ कि हम यहाँ से चले जाएंगे, मान लीजिए हमारे 25 साल उम्र है, अगर तुम हमें यहाँ से लेकर के चले जाओगे तुम्हारा क्या फ्यूचर रहेगा, क्या हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? अगर लोगों को अगर मालूम चल जाए कि हाँ मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ 4 साल 5 साल, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तो क्या मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? कौन मेरा केयर करेगा? मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? क्या मैं करूंगी जो मुझे खाने को मिलेगा? तो कुछ लड़कियां जो थी, जो प्रोस्टिट्यूट जो थी, वो लड़कों के साथ मारपीट करने लगी। और जो ब्रोथल थे वो सब भी मारपीट करने लगे। वो सब तो भाग गए क्योंकि वो सब तो मार खाए जाते थे। तो मुझे याद है कि कम से कम 40-50 लड़कियां वो थी, मतलब वहां से बचाई गई थी। 40-50 लड़कियां रेडी थी कि ना हम लोग तैयार हैं इस तरह का मतलब चलने के लिए। एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, न्यूज़पेपर में बहुत आया हुआ था, मीडिया में भी आए हुए थे, सब कुछ चला था। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर लास्ट ऑप्शन नहीं बचता है तो पुलिस के लिए है, आप लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो यही कहता है कि आप काउंसलिंग करिए, काउंसलिंग बाय परसुएशन करिए, कोएर्सन करिए। एक मैं बता दूं कि प्रोस्टिट्यूट के मामले में 99% के केस में काउंसलिंग और कैजुअलिंग बाय परसुएशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं दिखता है। क्वेश्चन एक मेथड होता है जिसमें कि आप थोड़ा बहुत जो भी करना है आप करिए। ये बेसिक फैक्ट रहा, और आगे मैं डिस्कस करूंगा इसका, ये क्या बोलते हैं, मतलब कंटिन्यू करूंगा। अब बस 5 मिनट टाइम दो ताकि मैं इस केस को ब्रीफ कर दूं। इस केस का नाम है गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें गौरव जैन एडवोकेट रहते हैं, और उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ते हैं इंडिया टुडे में, और उसी आर्टिकल के बेसिस पे प्रोस्टिट्यूट के बच्चे को के प्रोटेक्शन के लिए केस फाइल कर देते हैं। रिट पिटिशन एक्सेप्ट हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट गौरव जैन की बहुत तारीफ करता है कि आप ऐसे मुद्दे को उठाए, बहुत ही अच्छा लगा। और तो इनकी डिमांड थी गौरव जैन की कि प्रोस्टिट्यूट के बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोल दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह सजेशन सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर अलग से स्कूल खोल देंगे तो बाकी बच्चे तुरंत उस बच्चे को तुरंत कहना शुरू कर देंगे कि ये प्रोस्टिट्यूट का बच्चा है, तो ब्रांडिंग और ज्यादा हो जाएगी और सोसाइटी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रोस्टिट्यूट के बच्चों के लिए सबसे बेटर ये रहेगा कि प्रोस्टिट्यूशन के एरिया से हटा करके रिहेबिलिटेट करके दूसरे एरिया में जहाँ नॉर्मल स्कूल चलते हैं, जहाँ सारे बच्चे जाते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट, वहीं पे इन बच्चों को भेजा जाए और सोसाइटी में मिंगल हो जाएंगे और सोसाइटी में अच्छा काम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए यह गाइडलाइन दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मिस्टर गौरव जैन, आपने तो एक ही मुद्दा उठाया है, लेकिन ये मुद्दा इतना हाई प्रोफाइल है, इतना मतलब कि जरूरी है कि हम बाकी मुद्दे को भी डिस्कस करना चाहते हैं इसी के साथ, और हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब उसमें क्या हुआ, जब आगे की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं तो जजमेंट में ही आता है, शुरू करता है जजमेंट। जजमेंट में ये कहता है कि जब एंशियंट टाइम में महिलाएं बहुत ही कमजोर मानी जाती थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर, भंडार नायक, गोल्डा मेरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, बल्कि पुरुषों से ज्यादा बेटर कर सकती हैं। आप देख लीजिए कि आज तक भारत के जितने पुरुष प्रधानमंत्री हुए, किसी भी कहीं से भी एक्वायर नहीं कर पाए प्रॉपर्टी को, लैंड को एक्वायर नहीं कर पाए, कंटिन्यू हर कोई लूज ही करता चला गया। लेकिन एकमात्र मिसेस इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के लैंड को, भारत के टेरिटोरी का एक्सटेंड किया था। उन्होंने सिक्किम को भी चाइना के पलक झपकते सिक्किम को भी विलय कर लिया, जो कि चाइना अटैक करने वाला था सिक्किम पर, उसको भी विलय कर लिया चुपके से, और साथ में पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। इस तरह का पार्ट जो था, तो ये बात रखा गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिर भी मैक्सिमम महिलाओं की कंडीशन आज भी बहुत अच्छी नहीं है,
और खास तौर से जो फॉलन वुमेन है, जो प्रोस्टिट्यूट हैं, उनकी कंडीशन तो और ठीक नहीं है। इसलिए हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसके बेसिस पर हम रिपोर्ट के बेसिस पर हम इसको एनालाइज करेंगे। कोर्ट ने बीसी महाजन के अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। बीसी महाजन ने इसके अध्यक्षता में वो किया, रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट सबमिट किया तो कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्री में भी कंटिन्यू रहा है, तो प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू रहा है, और प्रोसिक्यूशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह, गुड्स की तरह देखा गया। कभी उसे मानवता की निगाह से देखा ही नहीं गया। कभी ये देखा ही नहीं गया कि हाँ, एक महिला निसहाय महिला है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है जीने के लिए इस धरती पर, इसलिए प्रोसिक्यूशन का काम कर रही है। अब बताइए कौन महिला होगी जो अपने खुशी खुशी जाएगी कि हम अपना मोरलिटी वो करें, लूज करें। फिर रीजन, प्रोस्टिट्यूशन का रीजन क्या है? कोर्ट ने कहा कि 80% केसेस में पॉवर्टी रीजन है, कुछ मामले में इलिटरेसी है, कुछ मामले में कोercive ट्रैपिंग है, कुछ में सोशल स्टिग्मा है। लेकिन जो नया ट्रेंड है, अब कोर्ट का कहना था कि ये पुराने ट्रेंड हो गए, लेकिन जो नया ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा नहीं जा रहा है। नया ट्रेंड में ये है, देखिए नया ट्रेंड में जो लग्जरियस लाइफ है, आपकी इनकम 5 रुपया है, खर्चा 50 रुपया है, तो आपको 45 रुपया कहाँ से आएगा? तो 45 रुपया के लिए जो आप लीड कर रहे हैं, तो बहुत सारी औरतें इधर की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि 16 से 19 साल के बीच में जनरली ये एक्सेप्ट होती हैं, रियलाइज होती हैं, और जैसे ही इनकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ेंगे, ग्राहकों की संख्या कम होगी, और एक उम्र के बाद प्रोस्टिट्यूशन का काम ही खत्म हो जाता है। आपके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहेगा। वो कहेगा जब हम पैसा ही दे रहे हैं तो ओल्ड वुमेन के साथ क्यों करें, हम यंग वुमेन के साथ करेंगे। बहुत सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद जो औरतें सेक्सुअल इंटरकोर्स जो खत्म हो जाता है पीरियड उनका 35 साल 40 साल के बाद, तो वो मैनेज ब्रोथल, वो मैनेज करने लगती हैं। हमने जो मूवी आपको भेजा था, और जो लक्ष्मी मूवी देखा था, उसमें भी आप यही देखेंगे, एक लेडी जो होती है शुरू में प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, एज जब बढ़ जाती है तो ब्रोथल को मैनेज करने लगती है। अब बच्चों का, चिल्ड्रेन का प्रॉब्लम क्या है? चिल्ड्रेन का पहला प्रॉब्लम यह है कि वो फादर होता ही नहीं है। फादर सबसे डायर नीड होता है। एक तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स किए, आपने एंजॉय किया, अब आपने एंजॉय किया और क्या हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुआ, आपने ध्यान ही नहीं दिया। और कल को आप रोड पर कोई बच्चा दिखाई देगा तो तुरंत गाली दोगे, साले की प्रोस्टिट्यूट हो तुम। गाली जरूर दे दोगे, लेकिन ये तुम नहीं कहोगे कि तुम जैसे इंसानों की वजह से, तुम जैसे पुरुषों की वजह से ये प्रोस्टिट्यूट का बच्चा है। तो हर कोई दूर से सिंपैथी दिखाता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है हर कोई उसको छोड़ता नहीं है, मोरलिटी फिलॉसफी में ही रह जाती है। तो पॉइंट इज दैट इस तरह का फादर नहीं रहता है। फिर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हार्डशिप बढ़ने लगते हैं, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और दुर्भाग्यवश भारत में 65%, 66% प्रोस्टिट्यूट जो है, जो कि बच्चा ऑलरेडी उनके पास है। इसका रीजन भी बता दिया कि कस्टमर कंडोम या कंट्रासेप्टिव यूज नहीं करता है। और दूसरा रीजन ये है कि मदर प्रेग्नेंट होने के बाद मदरहुड का एक जो फीलिंग होती है वो आ जाती है, और वो डिसाइड कर लेती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को पालूंगी। अब ह्यूमन राइट सबके लिए, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो। और प्रियम्बल भी यही कहता है कि इक्वलिटी फॉर ऑल। प्रोस्टिट्यूट को भी, prostitute first of all, she is a woman, then prostitutes, and that woman is a first of all citizen in this way, and that citizen first of all human being like this। और प्रियम्बल के बाद फंडामेंटल राइट भी है, 14 भी है। ये सबके लिए, पर्सन का मतलब सबके लिए, प्रोस्टिट्यूट के लिए भी है। अब स्टेट भी स्पेशल लॉ बना सकता है। इस लॉ के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 23 और इसको यूज करके सप्रेशन ऑफ सीता एक्ट बनाया गया, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 में लिखना भूल गया हूँ, आर्टिकल 21 में एवरीवन, आप इसको डिस्कस कर लेना है। और कुछ यूडीएचआर के बारे में आप डिस्कस कर लेंगे, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, और कल हम आपको गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। तो हमें लग रहा है कि टाइम क्लास का हो गया होगा। टाइम हो गया है? हाँ सर, 15 मिनट ज्यादा हो गए। अच्छा चलो ठीक है, तब अगले बार मिलते हैं, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हाँ, कहाँ से कटेगा हो?
कैसा है ध्रुव? ध्रुव भाई, हेलो ध्रुव।